हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ભગવાનના દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓકે, એક મિનિટ. ઓકે, આજે મોનિકાનો છેલ્લો દિવસ છે, તો ચાલો એક શોર્ટ પદ ગાઓ मोनिका। कोई है मोनिका? नहीं, ओके, बाहर आप गई। आज लास्ट डे तो आप गाओ, काल से આપણે ગાવાનું છે અરુણાબેન ને મીનાક્ષીબેન। ઓકે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકાળ, જીવન મારું બન્યું અકાળ, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે
મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी. जय सच्चिदानंद. और कौन है आपकी खास? मोनिका? मोनिका? मोनिका हाँ, कौन है आपकी खास? खुशी है एक. अच्छा ओके, तो नव कलम बोलो. जय सच्चिदानंद हाँ. खुशी. जय सच्चिदानंद रश्मि दादा, जय सच्चिदानंद बिहारी दादा. जय सच्चिदानंद. अब बोलिए. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન ડૂબે, ન ડૂબાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન ડૂબે, ન ડૂબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માથી સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલી જાય, ન ભૂલવાઈ જાય કે ભૂલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુરજુ ભાષા બોલવા પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું સ્ત્રી, પુરુષ વગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપના ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેલા લોકોનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાને નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद बिहारी दादा. जय सच्चिदानंद. त्रिमंत्र बुलाए प्लीज. त्रिमंत्र बोलाओ. या नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सवसावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो,
eso panchanamukaru सव्वपावपणासनो savapavapanasano मंगलाणं च सव्वीसि mangalanam cha savesim पद्मं हवै मंगलम padamam havai mangalam ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya. जय सच्चिदानंद Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। अभी बिहारी दादा, अभी 1 मंथ के लिए बच्चों का सत्संग नहीं है वेकेशन के लिए, तभी पद सुनेंगे। हाँ ओके। ए खुशी, हाँ कैसा रहा आपका फाइनल एग्जाम? आज अच्छा गया। कौन सा था? आज सोशल था, और छोटी का? छोटी का साइंस था। ओके, सब ठीक है? हाँ ओके बेटी, ओके ओके, यू कैन सिंग zoom 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 zoom। जय सच्चिदानंद। अनुभव कहता है ओ, हम। एक मिनट, अनुभव तो एक मिनट दादा। आपने 2410 बोला था ना? हाँ मैंने वही देखा था। 2410 है इधर। आपका अनुभव है? हाँ अनुभव कहता हमको। ओके, मेरे को निकालना पड़ेगा। तो आर यू श्योर इज 2410? हाँ 2410 ही है। मैंने वो अभी तो रखा था 2410। वो जुमक है। एक मिनट के 024 होगा। नहीं वो 24 ही है ना? हाँ 24 ही है। एक मिनट में देखता हूँ। ओके 24। एक मिनट। नहीं 24 में नहीं है। जुमुक विश्व दादा साक्षी अनुभव। ओके, एक मिनट मेरे को निकालना पड़ेगा। अनुभव कहता है 4001 है। अनुभव कहता है हमको 4001। ओके मोनिका, हाँ ओके गाइए अभी। हाँ देखाय છે ને બેરિયાનજી? हाँ ओके ओके मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद। अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की ना गलती देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो,
अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। छोटों बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया, और माना हमने अच्छा किया। वही मिल गया क्रोध को, तन मन का ज्वाला देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, सब अपनी भूल को देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। कामचोरों ने शुद्धार किया, फिर अपना काम निकाल दिया। बराबर बराबर ठीक से पढ़ो, बराबर ठीक से पढ़ो शब्द। हर नहीं, एक लाइन में એ ભૂલ લોકોને પડતી है। ગુજરાતી નથી આવડતું એમને. हाँ तो पण દરેક લાઈન માં ભૂલ પડે છે। अच्छा बताइए ना आप. ओके. बराबर लो और शांति से गाओ, खोल के, आवाज खुला। जैसे मैं पहली 2 लाइन गाता हूँ, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। जरा बाहर से और शांति से गाने का है, पहले से गाओ। शुरू करो पहले से। आप गाइए, हम पीछे रिपीट नहीं करते नहीं हैं। नहीं, आप लोग गाओ। मैंने बताया कि आप लाइट में अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। नहीं, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। थोड़ा बाहर और शांति से शुरू करो, गा सकोगे अच्छी तरह से। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। दूसरों की गलती ना देखो। बोल है तो सजा खुद भोगो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती न देखो। छोटों बड़ों ने क्रोध किया, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया। छोटों पर बड़ों ने, छोटों बड़ों ने छोटों क्रोध पर, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया। जब भी आपको कोई गुजराती गीत गाना है तो पहले हिंदी में आपको लिख लेने का, हिंदी लैंग्वेज में लिखने का, बराबर। हाँ, तो फिर आपको शब्द मालूम पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट गाओगे तो शब्द आपको आता नहीं है तो फिर गड़बड़ होती है। तो पहले जो भी गीत गाना है गुजराती, तो उसका हिंदी में आपको लिख लेने का, हिंदी में ट्राई करके फिर गाने का है। चलो, छोटों बड़ों, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया, और अब और माना हमने अच्छा किया, और माना हमने अच्छा किया। वही मिल गई है वहां मिल गई।
क्रोध को खुराकी, वहां, वही नहीं, वहां। वहाँ वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी, तन मन में ज्वाला देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, सब अपनी भूल को देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। चमचोरों ने शब्द चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया। चमचों ने शहद को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल दिया, फिर अपना काम निकाल दिया। आमन हमन है मान। मान महर्ष शत्रु खुद का, तन धन का अपव्यय देखो, तन धन का अपव्यय देखो, अपव्यय। तन फिर से धन का अपव्यय देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। जय सच्चिदानंद। जय पूरा गाओ, सच्चिदानंद। पूरा टाइम है ना, गाओ पूरा। अम, अभी 2 लाइन ही बाकी है, गाओ। मैंने इतना ही प्रिपेयर किया, मुझे इसका आधा ही मीनिंग प्रिपेयर जानना। किया, अरे फिर पूरा तैयार करके फिर गाना पूरा बराबर। तो हाँ बिहारी दादा आप हाँ फिनिश कर लिए, आप हाँ फिनिश करो ना। हाँ। है मान महा शत्रु खुद का, गाओ। है मान महाशत्रु खुद का, तन धन का अपव्यय देखो, तन धन का अपव्यय देखो। इस जग में संतों की तरह, इस जग में संतों की तरह, अपमान भी सहना सीखो, अपमान भी सहना सीखो। दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो। भूल है तो सजा खुद भोगो, भूल है सजा खुद भोगो। यह विश्व फंसा है माया में, यह विश्व में सजा की माया की, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना नहीं। मैं शरीर हूँ वो है जीव का अहम, मैं शरीर में हूँगा जीव कारण, रचता है जगत जीव देखो, रचता है जगत जीव देखो। हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, आनी वृद्धि है द्वंद्व की, झंझट से निकलना सीखो,
झंझट से निकलना सीखो, अनुभव कहता है हमको। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। खुद अपनी गलती देखो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये तो हिंदी का तो बहुत बढ़िया पद है। हम्म, तो हिंदी का में तो आपको सब मालूम पड़ गया। इधर कुछ पूछने का है, क्या करने का है इसमें? नहीं, जो एक थोड़ा समझ में आ रहा था, बट एग्जाम्पल के साथ समझाता, समझ जाती तो और अच्छे से अनुभव होता। ओके, किसके बारे में? फिर स्टार्टिंग जब से। ओके बिहारी दादा। हम्म, फिर अच्छी तरह से तैयार करके पूरा गाने का है, बराबर। हाँ। हम्म, बोलिए क्या बात करेंगे। मोनिका, क्या क्या जानने हाँ। का है ये पद में? हाँ, इसमें वो थर्ड स्टैंजा में लिखा है, चमचों ने तो सेड को चढ़ा दिया, चढ़ा हाँ, दिया, वो। फिर अपना काम हाँ, निकाल लिया। वो जैसे कैसे? वो बाहर भी होते हैं ना, कोई सेठ है और उसके जो चमचे हैं उसके साथ काम करने वाले हैं, तो वो सेठ को चढ़ा देते हैं कि बहुत अच्छा किया सेठ जी, बहुत अच्छा, इसको तो ऐसा ही करना चाहिए, सेठ जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। तो ये जो अगल बगल वाले जो चमचे हैं वो सेठ को चढ़ा देते हैं, फिर अपना काम निकाल लिया। तो जिन लोगों ने सेठ को चढ़ाया है, सेठ सेठ तो खुश हो गया, और फिर चमचों ने अपना काम निकाल लिया। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे भीतर भी चमचे हैं, क्रोध मान माया लोभ, और जो सेठ है वो आत्मा है। तो वो क्रोध मान माया लोभ की वजह से वो सेठ को चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ मैंने ही किया, हाँ मैं ही करूंगा, मेरे बिना ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह भीतर वाले जो क्रोधमान माया लोभ है वो सब चमचे हैं, और वो सेठ को चढ़ा देते हैं। मतलब कि चढ़ा देते हैं मतलब कि मैं करता हूं ऐसा उसको भान हो जाता है, और वही भान के साथ नया कर्म का बंध पड़ जाता है। इसमें जो चमचे हैं क्रोधमान माया लोभ, तो वो उसका काम हो जाता है, हाँ। वो अपना काम निकाल लेते हैं ना। हाँ, और उसके आगे, हे मान महाशत्रु खुद है का है डबल है, मान महाशत्रु खुद का, तन धन का अपव्यय देखो। मान है हाँ। ना, मान भीतर में जो मान है, तो हाँ। मान की वजह से कि उन्होंने उसकी बेटी की शादी इस तरह की, इतना दिया है, तो मैं उनसे ज्यादा दूंगा, और मेरी बेटी की शादी ऐसे करूंगा कि आज तक किसी ने समाज में नहीं की है, और लोग भी बोले कि साहब आपने बहुत अच्छी शादी की, आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये मान की वजह से, मान जो है वो खुद का महाशत्रु है। मान मिलता है ना समाज में, बहुत अच्छा किया, हाँ। बहुत बढ़िया किया, तो ये मान की वजह से तन का भी
अपव्यय होता है और धन का भी अपव्यय होता है। व्यय हाँ। है तो चलेगा, खर्चा है तो चलेगा, लेकिन अपव्यय जो खर्चा नहीं करने का है वो भी खर्चा वो कर देते हैं बताने के लिए समाज को। 50-60 आइटम रख लेते हैं खाने में। हाँ। तो इस तरह सिर्फ दिखावा है। क्या है? दिखावा। दिखावा चलता है संसार में। इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो। इस जगत में जो संत हुए, बड़े बड़े संत हुए हैं और आज भी है, तो वो लोग उसका अपमान सहन करते हैं ना। हाँ। तो इसी तरह आप भी संतों की तरह अपना अपमान सहना सीखो। यह विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी इतने ही नहीं। माया, जगत के लोग माया किसको बोलते हैं? चीज वस्तु को माया बोलते हैं। ये पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये गहने हैं, मेरा मकान है, मेरी फैक्ट्री है। ये चीज वस्तुओं को जगत के लोग माया बोलते हैं। हकीकत में माया क्या है? माया यानी स्वरूप की अज्ञानता। जिसको हाँ। खुद के स्वरूप का भान नहीं हुआ है, वही सबसे बड़ी माया है। और माया की वजह से करती है कुदरत, व्यवस्थित शक्ति सब कर रही है, लेकिन उसको ऐसा ही लगता है कि मैंने किया, अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। तो ये माया जो नहीं है वो बताती है, और हकीकत में जो है वो नहीं दिखाती। माया यानी अज्ञान। क्या है? अज्ञान। अज्ञान। मैं कौन? मैं ये हूं, मैं ये हूं, वो हूं, और मैं करता हूं। तो माया यानी स्वरूप की अज्ञानता। और यह शरीर भी अपना नहीं है क्या? तो अपना नहीं है फिर भी असर होती है ना सब। हाँ, होती है। कोई कोई डांटे तो असर होती है ना। हाँ। तो क्योंकि वहां पर भी मैं खुशी हूं, वहां पर भी मैं लगता है, और मैं आत्मा हूं वहां पर भी मैं लगता है। तो व्यवहार दृष्टि से आप खुशी है कि नहीं है? हाँ। तो ये जो व्यवहार की मान्यता है, इसकी वजह से सब असर होती है। हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, तो भी असर होती है, क्योंकि वो मैं, मेरा, मैं खुशी, मैं बिहारी, ये जो मान्यता है, वो मान्यता की वजह से वो असर होती है। मैं शरीर हूं, वो है जीव का हम, रचता है जगत जीव देखो। मैं शरीर हूं, मैं बिहारी हूं, मैं खुशी हूं, मैं मोनिका हूं, वो जो है तो कि वो जीव का अहम है। हकीकत में मैं बिहारी नहीं हूं, हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन उस मैं शरीर हूं, ऐसा जो अहम है, वो अहम की वजह से मैं शरीर हूं, तो उसका ऐसा ही होता कि मैं ही करता हूं। तो इसकी वजह से ये सारा संसार खड़ा हो जाता है। सारा ये जगत जो खड़ा हो जाता है वो हमारे खुद का ही प्रोजेक्शन है। हानि वृद्धि के द्वंद्वों की झंझट से निकलना सीखो। ये जगत में हानि भी होती है और वृद्धि भी होती है, घटता भी है और बढ़ता भी है, सब में।
विचार कभी कभी ज्यादा आते हैं, कभी कभी बिल्कुल कम हो जाते हैं, बढ़ता रहता है ना। ये समुद्र में जो भरती आती है हाँ तो पानी बढ़ता है, फिर अपने आप पानी घट जाता है। तो ये जो सारा संसार है वो हानि वृद्धि के नियम के आधार पर ही चलता है। तो ये दोनों द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व यानी कि हानि है तो वृद्धि है ही, सुख है तो दुख है ही, दिन है तो रात है ही, दोनों जोड़ के है। क्या है? एक है तो दूसरा है ही, तो इसको द्वंद्व बोलते हैं। और जो आत्मा है वो निर्द्वंद्व है, वह दूसरा कोई कुछ नहीं है। तो ये हानि वृद्धि के जो नियम है वो द्वंद्व है, उनमें से बाहर निकलना सीखो। बाहर निकलना मतलब मैं शुद्धात्मा हूं। कभी क्रोध बढ़ता है, कभी कभी क्रोध बिल्कुल खाली हो जाता है, कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी बिल्कुल कम खाते हैं। तो ये सब चलता ही रहता है संसार में। द्वंद्व ही है। क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व यानी सब फायदा है तो नुकसान है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है। तो ये द्वंद्व है। और आत्मा जो है वो निर्द्वंद्व है। तो ये द्वंद्व में से बाहर निकलना आप सीखो। मतलब के शुद्धात्मा में रिलेटिव रियल की आज्ञा में रहना सीख लो। बराबर? हाँ और मोनिका खुशी रिलेटिव जान क्या बोल, रिलेटिव रियल में रहना सीखो, उसका क्या मीनिंग होता है? अब सबने ज्ञान लिया है। हाँ क्या हाँ, बोलो? क्योंकि रिलेटिव पहली आज्ञा क्या है? बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं मोनिका हूं कि खुशी हूं। रिलेटिव यानी क्या? जो विनाशी है, टेम्पररी है। ये मोनिका है, खुशी है, वो परमानेंट है कि टेम्पररी है? टेम्पररी। हाँ, तो जो टेम्पररी है, बढ़ता है घटता है, जो नाश होता है नया होता है, तो ये सब रिलेटिव है। रिलेटिव यानी हमेशा उसमें चेंज होता ही रहता है, बदलता ही रहता है, उसको रिलेटिव बोलते हैं। आज जैसे आप लोग दिखते हो, 10 साल के बाद आप ऐसे ही दिखोगे। नहीं। हाँ, तो ये रिलेटिव में फर्क आता है। लेकिन जो रियल आत्मा है, वो आत्मा, वो इसमें कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए उसको रियल बोलते हैं। रियल में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आता है। आत्मा वही की वही है, सिर्फ उसका ज्ञान दर्शन बढ़ता है। बराबर? हाँ लेकिन रिलेटिव में तो बहुत फेरफार आता है, हाँ इसीलिए तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं बिहारी हूं, और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। पहली आज्ञा बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं बिहारी हूं। हाँ जैसे खुशी है, एक मोनिका है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मौसी है, किसी की फूफा है, सब है कि नहीं है? किसी की फ्रेंड है। मोनिका खुशी एक ही है, लेकिन रिश्ते कितने हैं? बहुत सारे रिश्ते हैं। हाँ और, और शादी हो जाने के बाद और भी रिश्ते बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। फिर सास आती है, ससुर आते, ये आते, वो आते, आते हैं ना सब। हाँ हाँ,
तो वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से खुशी वही की वही है, लेकिन रिश्ते बदलते रहते हैं। सामने जेठ है, जेठानी है तो वो देरानी है, वो बहू है तो सामने सास है, वो मौसी है तो सामने बांजी है। कितनी सारी सगाइयां हैं, बहुत सारी है ना। हाँ। तो वो सब रिलेटिव है, और सभी जो सगाई है वो एक जैसी नहीं रहती है। जैसे कि आप दो बहनें हैं, तो आप दो बहनों का व्यवहार भी बदलता रहता है। कभी कभी बहुत प्यार आ जाता है, कभी कभी बोलते भी नहीं है, एक दूसरे को चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारते भी है, झगड़ते हैं। तो ये बहनें तो है ही, लेकिन फेरफार होता रहता है। कभी अच्छा बनता है, कभी गैर समझ होती है, कभी दया आती है, कभी निर्दयी भी हो जाती है। बहन वही की वही है, लेकिन हिसाब के अधीन रिलेटिव बदलता रहता है। क्या करता है? बदलता रहता है। रिलेटिव हिसाब के अधीन है। और जो शुद्धात्मा है बाय रियल व्यू पॉइंट, तो वो रियल है, वो किसी का चाचा मामा फुआ नहीं होता है, वो शुद्धात्मा ही होता है। तो ये पहली दो आज्ञा है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ये हूं, और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, दूसरी आज्ञा। और ये जो हानि वृद्धि है, तो वो तीसरी आज्ञा जो है व्यवस्थित शक्ति, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, तो ये सारे जगत को चला रही है। जैसे विचार आते हैं तो आपको नहीं करना है तो भी आता रहता है ना, हाँ। तो विचार की वृद्धि होती है। फिर अपने आप आधे घंटे में फिर वो विचार शांत हो जाते हैं, तो उसकी हानि हो गई, वृद्धि हुई, हानि हुई। कभी ज्यादा भूख लगती है, कभी कम भूख लगती है, कभी भूख ही नहीं लगती है, कभी ठंडी लगती है, ज्यादा ठंडी लगती है, कभी ठंडी नहीं लगती है। तो ये हानि वृद्धि सब होती ही रहती है, और वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। क्या है? व्यवस्थित शक्ति के अधीन। हाँ हाँ, ये जगत में जो भी फेरफार हो रहा है, जितने भी हमारे आसपास में, हमारे शरीर में, और पूरे देश में विदेश में सब फेरफार हो रहा है ना, हाँ। तो वो व्यवस्थित शक्ति हानि वृद्धि के नियम के अधीन वो करती है, कोई व्यक्ति करता नहीं है। हाँ। तो ये हानि वृद्धि के द्वंद्व से निकलना सीखो, तो ये झंझट से निकलना सीखो। चौथी आज्ञा कौन सी है? फाइल नो संभावे निकाल। मतलब फाइल आई तो उसको संभाव से निकाल करना। एग्जाम्पल दो मुझे। फाइल नंबर 1 खुशी, और फाइल नंबर 2 मम्मी। मम्मी कोई भी काम बोलती है तो उसे मैं नहीं बोल के नहीं करना, उसे हाँ बोल के वो काम संभव से निपटारा करना। हाँ, काम करके भी संभव से निकाल हो सकता है। अगर आप काम नहीं कर सकती, थोड़ी देर के बाद करती, तो बोलना कि मम्मी मैं 1 घंटे के बाद कर पाऊंगी, अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में करूंगी, चलेगा? हाँ। तो फिर वो तो इस तरह से भी संभव से निकाल होता है। काम करके भी हो सकता है, काम उसके मन को समाधान देने का है। क्या करने का है? समाधान। समाधान देने का है। तो फाइलों का संभव से निकाल, तो मम्मी आपने बताई, लेकिन आपके भीतर में भी बहुत सारे लोग हैं। चलो अभी टीवी देख लो, चलो टीवी देखने बैठ जाओ, चलो चलो खेलने चले जाओ,
बराबर भूख लगती है, तो फिर तो ये फाइल नंबर 1 का भी संभव से निकाल करना पड़ेगा ना, हाँ खाना खाना पड़ता है ना। हाँ आप एग्जाम है, आपने तय किया है कि मैं रात को देर रात तक पढ़ूंगी, 2 बजे तक पढ़ूंगी, लेकिन 11 बजे ही आपको नींद आने लगती है, बराबर नींद आती है, तो फिर क्या करोगी? फाइल सो का जाओ। संभव से निकाल। निकाल करना। हाँ, तो इस तरह से है। तो ये फाइल नंबर 1 है, तो उसका भी संभव से निकाल करने का है। 2 3 4 5 है, वो तो है ही, वो तो दिखती ही है, लेकिन फाइल नंबर 1 का भी संभव से निकाल करने का है, बराबर। हाँ बात समझ में आई? हाँ अगर समझ में नहीं आए तो बोल देना। हाँ। तो ये 4 आज्ञा हुई, और 5वीं है, कौन सी है? चारों चार आज्ञा में रहकर अकाउंट में शुद्धात्मा के अकाउंट में जमा करना। शुद्धात्मा के अकाउंट में जमा करने का। क्या क्या जमा किया आपने? सत्सारण करके ये 4 आज्ञा जो बताई है दादा ने, उसे फॉलो करके शुद्धात्मा के जो अकाउंट है उसमें जमा करना। और और उन किताब दी है आपने, वो विधि करने की किताब दी है, हाँ वो विधि करने की हर रोज टाइम निकाल के, हाँ अगर टाइम मिले तो कविराज के पद सुनने का, अप्तवाणी पढ़ने की, बहुत सारी किताबें हैं। और हाँ आज्ञा दृष्टि से आप जितना भी रहते हैं व्यवहार में, या व्यवहार ना होए तब भी, तो वो सब शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा होती है, हाँ बराबर। लेकिन ये विधि हाँ हर रोज करने की हाँ करते हो आप? कभी कभी चूक जाती है। कभी कभी करते हैं कि कभी कभी चूक जाते हैं? कभी कभी चूक जाती है। कभी कभी चूक जाते हैं, तो अच्छा है, लेकिन भाव रखने का है कि हमको ये विधि अवश्य करनी है, बराबर। तो वो हाँ शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा होगी, और उससे आपको बहुत पढ़, आपको लगता है कि भाई हमारा पढ़ने का समय बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप ये करोगी तो सभी देवी देवताओं आपके ऊपर राजी रहेंगे, आपके भीतर की शक्ति भी बढ़ेगी, और शुद्धात्मा का खाता भी बढ़ता जाएगा। हाँ समझे? हाँ लेकिन आपको क्या दिखाई देगा कि ये पढ़ने का टाइम बर्बाद हो रहा है, तो कि नहीं, आधे घंटे घंटे एक आप विधि कर लेते हैं तो बहुत सारी शक्ति आपके अंदर वो प्रकट होती है, और एकाग्रता प्रकट होती है। तो फिर जो तू 3 घंटे पढ़ती है, वो 1 ही घंटे में आप पढ़ पाओगी, और अच्छी तरह से याद रह जाएगा। इतनी हाँ सारी शक्ति अंदर डेवलप होती है, इसलिए हाँ ये विधि हर रोज करने की, टाइम हाँ निकाल के, बराबर। हाँ हाँ, तो ये 5 आज्ञा हो गई। और कोई प्रश्न है तो बात करो। हम्म, कोई है? हाँ हाँ दादा। बोलो। कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके, तो अभी वेकेशन में कुछ प्रोजेक्ट रखना, हाँ हेल्थ एंड संसाधन वेरी इम्पोर्टेंट, वो तो एवरीडे करने का। ओके, हाँ हाँ कुछ भी प्रोजेक्ट लेके जाना। उन लोग बिहारी दादा, उन लोग एक मार्च के लिए जोधपुर जाते हैं, या वेकेशन। वेकेशन।
ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ कभी कभी हमको जय याद करना। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो चरण विधि की किताब लेकर जाने का और हाँ अप्तवाणी वगैरह भी लेके जाने का है, सब पढ़ने का है, टाइम निकाल के खेलने का है, घूमने का भी है और साथ साथ में ये सुबह में ये करने का है, बराबर हाँ सभी काम करने का है। मम्मी को हेल्प भी करने की है, खेलने का भी है, घूमने का भी है, रेस्ट भी करने का है। लेकिन ये हमारे जो सिद्धात्मा का चोपड़ा है वो हर रोज अच्छी तरह से भरना चाहिए। हाँ हाँ चलो, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ऑल हैव अ गुड टाइम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।